Good morning, friends, and welcome to my channel. Today is 3rd November, and it's Sunday, and it's a lazy Sunday. Sorry, I'm just very casual. I just took a shower and made a breakfast for myself. It's called poha, and उसमें कांदा और वो सब माल मसाला नहीं है. I just made तड़का and I made it on a tawa, and it's tasting awesome. It's green chili and कड़ी पत्ता का तड़का with हींग एंड थोड़ा सा हल्दी एंड पीनट्स ऑफ कोर्स और राई जीरा. सिंपल रखो यार, वो पोहे में इतना सारा माल मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है. एंड यू देखो कितना परफेक्ट आया है मेरा पोहा. आई सेड फर्स्ट आई हैव फू सम बाइट्स. आई मेड लिटिल बिट, नॉट मच, जस्ट इतनी जो प्लेट में है उतना ही बनाया, ज़्यादा नहीं बनाया क्योंकि पोहा बहुत ड्राई रहता है, राइट. सो I enjoyed my poha and I'm having milk powder wali brew coffee. I made it quite strong with jaggery, not sugar. So I said let me taste this. तो ये है मेरी brew. Check this out. Yeah, it's tasting damn good. I said let me have some coffee. क्योंकि पूरा दिन कल मैं हर्बल टी पे थी एंड दैट्स हाउ आई वाज जस्ट रिलैक्सिंग. सैटरडे को मैंने आई डोंट नो वेदर आई शुड गो एंड बाय सम मोर इयररिंग्स. द डिज़ाइंस आर फैब्युलस एंड सीरियसली आई विश आई कुड शेयर दिस पोहा विद माई बिलवड, जिनको भी पसंद आता है खाने को. बहुत ही सिंपल महाराष्ट्रियन डिश है, मुझे तो बड़ा मज़ेदार लगता है. मराठी का एक डिश है ना, तुअर दाल, जिसमें वेरी टेस्टी इट इज़. कुछ लोग इसमें नींबू वगैरह डालते हैं, नहीं भी डालेंगे तो चलता है क्योंकि बाय इट सेल्फ पोहे का फ्लेवर बहुत अच्छा रहता है. बट आई सेड द वे तुम उसको तड़का मारते हो, और अनियंस पटेटोज़ अगर नहीं डालने हैं तो नहीं भी डाल सकते हो. इट्स ओके. प्लेन एक डिश बनानी है एक पर्सन के लिए तो ये दिस इज़ फैब्युलस. मैं कांदे पोहे भी बनाती हूँ, बटाटा पोहा भी बनाती हूँ. कहीं कहीं बहुत सारा नारियल भी डालते हैं इसके अंदर. बट कीप योर डिशेस सिंपल, तुम इंजॉय करोगे. व्हेन देर आर टू मेनी इंग्रेडिएंट्स ना, इट द टेस्ट इज, you cannot figure out the taste. And since I'm fasting, my senses are enhanced. Every taste, every flavor is programmed in my head. Poha is a very dry dish. We human beings eat a lot of dry, जैसे कोई भी चीज़ है बहुत ड्राई. ओट्स इज़ वेरी ड्राई, उसको इतना सारा मिल्क या कुछ डाल के करना पड़ता है, राइट. लुक एट माई हेयर. इज इट लुकिंग गुड? इट्स लुकिंग गुड आई गेस. सॉरी, आई एम अ लिटिल because yesterday all these firecrackers na, because of that there's so much of pollution and nasal issues, but itna nahi hai because of my herbal tea. I said let me do something different. After a long time I'm having poha, maybe after 2-3 months or something. Before आए दिन बनता था मेरे घर में, हफ्ते में 2 बार, 3 बार भी बनता था. These are simple dishes which all can do. I was in the mood to do some onion paratha, but I said ये गर्मी में 35 डिग्रीज में वो अनियन पराठा बनाते बनाते मेरा पेट भर जाएगा. Seriously, let's see, maybe tomorrow morning
I'll wake up very early and I'll do it. So I can't stand in the kitchen. It is so, even with the fan on, very uncomfortable. I don't know how people can eat so many things in this 35 degrees. Your food should be bare minimum, and you should be eating like cold stuff like cucumber and all this kind of things. Who am I to say this? But how can you eat? पानी पी के पेट भर जाता है. Seriously, month of October has been so much of such a blessing for me. I can't tell you all. I said let me share my breakfast routine. Routine भी नहीं बोलूँगी. I don't have a routine as such. Sometimes I have something, sometimes I don't have anything. But I have my herbal tea or my green tea. When did I last have coffee? I even remember 11th October. That also किसी कैफेटेरिया में किसी ने ट्रीट दिया था. फर्स्ट क्लास कैफेटेरिया वाज ऑसम. अस्पताल का है ना, आउटस्टैंडिंग. That's the time I had coffee. Halloween. Witches का वो ये ना, black magic is of the highest. This on 31st. काफ़ी सारे एनिमल्स की बलि चढ़ाई जाती है on 31st. You'll see a lot of pets missing if they are gone out or something. See, when they are doing dark forces now, when they have to offer some sort of a blood sacrifice. चाहे वो कितने भी on the top हो, कितने भी साफ सुथरे इमेज के हो, ये चढ़ाते. blood sacrifice is a must. Hello Ina, I'm sorry if I'm not replying to all your comments because they are so nice and they are so good. That's the reason why I keep mentioning your name and I keep mentioning your comments in my videos, which make them timeless. I can reply them and a handful of them will read, but the very reason I'm giving a special mention in my videos is because they are really very good. And I prefer talking straight. There was a time I used to type a lot. I was a क्या बोलते ना, keyboard warrior. Vela. I used to do so much of typing and so much of words and so much of material. See, this part of my life now I have come. I appreciate your efforts. That's the reason why I keep taking your name, and I keep because see, the very reason very few people really understand and express it in words. There are a lot of people who want to express it but they cannot, and you have the wonderful amazing gift of putting your thoughts into words. I think we are blessed for that. So please do not feel bad अगर मैं लोगों को सिर्फ थैंक यू बोलती हूँ. So true, correct. I said एक तो YouTube keeps deleting a lot of things. अगर मैं ज़्यादा ऐसे लिखती रहूँ तो वो सब गायब कर देते हैं. I think मैंने बहुत बार ये चीज़ बोली है. So I really want to keep my those comments as it is. Okay. फिर बाद में मैं क्या बोलूँ. मेरी कॉफ़ी ठंडी हो रही है. सी, दिस इज़ माई हेयर post this henna and shampoo and all this. See, I'm getting this kind of a look. I'm going in some thoughts, like मैं अपने माइंड में सोच रही थी कि how can you look younger? How people are spending so much of pills, so much of treatment. और तुम मुझे देखो,
मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रही हूँ, ये मैंने अपने खुद से एक्सपीरियंस किया है। जब से मैंने फास्टिंग शुरू किया है, माई बॉडी इज़ बिकम लाइटर एंड लाइटर. इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू एडजस्ट टू फास्टिंग बिकॉज योर बॉडी, यू विल फील लाइट वेट, गिडी, नॉशिया, एसिडिटी, ये सब हो जाता है इनिशियली. बट वंस यू स्टार्ट फास्टिंग एंड फास्टिंग एंड फास्टिंग ना, फिर वो तुम्हारी आदत बन जाती है. जैसे आई विल ईट ओनली व्हेन आई एम seriously hungry. When I really want to eat something and I'm hungry, that's the time I will eat. Otherwise, no. And we accumulate a lot of toxins over a period of time in our bodies, and for them to go out of our bodies, it's impossible because we are feeding so much food, right? Sugar, 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 sugar. I don't know, I have mastered that art of fasting, so that's the reason why there's this glow on my face. My face is looking clean, nice, hair is getting better. I'm not here to promote fasting, or I'm not supporting fasting also, unless and until, see, the reason I'm doing this from past 2 years. As I said, I started out with anger. But now I'm doing it very much willingly. Okay, now it's become a part of my routine. And as I said, I do not eat too many things. Mono meal, मतलब एक मील, अगर ये पोहा है तो पोहा, उसके साथ चटनी, सॉस, सांबर. You know, some people eat too many things with it, ना condiments, because ये dry रहता है. So see how beautiful it looks. That's how it is. And it's tasting really awesome. So, and I eat like sparingly processed food. You can't help it. Everything is processed. I can't. We cannot act hoity-toity about it. But since my diet is very selected and limited, and with lots of movements. There's a movement, as in I go for my walks, my morning routine is there. So all that has helped me. That doesn't mean I'm obsessive about my morning routine कि एक दिन नहीं करूँगी तो मर जाऊँगी. I have a break. First, second, third, I did not go to the pond park. I said I really need to reset my routine again, because अभी वो क्या हो गया ना, again they'll see me at 6:30 and again they'll start pointing out. So what I want to do is keep a break and maybe take it easy, or leave early, or make shorter videos. Earlier I made lengthier videos. Now I'll make only 10 to 15 minute ka video, and 6:50 or 6:55 I'll make a move, or 6:50, 10 minutes before 7. So I make my appearance very short and limited, and Monday to Friday. And Saturday, Sunday I might just go to this other park or something and relax myself. So I want to reset. Every month I want to reset something new with my routine. Herbal tea has given me a lot of health benefits. I have got a lot of health benefits with the herbal teas. Seriously, if you start this kind of a thing, you won't regret it, plus you will enjoy it, right? People want all this taste to their tongue. They want sugar, sugar, sugar. If there is no sugar in anything, people go crazy. Very sad. I made limited. I seen people putting a lot of food on their plate. That is one biggest mistake people do, is when they put a lot of food on their plate. Food should be proportionate. Pehle you should. Then they don't like the taste, then they waste it, then they leave it, then they make faces, then they pass comments. So always take. मैं हमेशा I'm a taster. थोड़ा सा लेती हूँ, मुझे अच्छा लगा तो I will take little more. I never fill my plate like this, unless and until it's a buffet and I'll take a little bit of everything. Sometimes, generally, otherwise वो क्या होता है ना, the little bit of everything means it becomes so much on the plate. I don't know how people make mountains out of it. How can you eat so much sparingly? You won't get the taste of nonetheless anything. You will not enjoy food. So this is what I want to say. Amazing. I enjoyed my poha.
व्हेन आई सी पीपल मेकिंग हॉरिबल पोहा आई फील लाइक सेइंग अरे भाई इसको तड़का तो बराबर से मारो. चलो कांदा बटाटा नहीं डाला, टमाटर नहीं डाला तो भी ठीक है, नींबू भी नहीं डाला वो भी ठीक है, कड़ी पत्ता भी तो डाल दो. आई सी दैम इन द डब्बा एंड आई कैन सी कि वो कितना हॉरिबल टेस्ट कर रहा होगा, लेकिन पीपल जस्ट ईट इट. आई होप यू अंडरस्टैंड. और चटनी वटनी डाल के तो समझ में नहीं आता है कि कैसे भी ऐसे सिर्फ हल्दी डाल के उसको थोड़ा सा ये करके झोंक डाल के ये करते, कुछ भी नहीं फ्लेवर होता है उसके अंदर. Tomorrow I'll do some onion paratha for myself. Onion and mint. मूली का पराठा मेरा हमेशा फेवरेट रहा है. लेट्स सी. तो मेरे बस में होता तो मैं अलग अलग ट्रेडिशनल आउटफिट्स में बैठ के यहाँ पे अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊँ विद माय इयररिंग्स एंड एक्सेसरीज. वो बोलते ना तुम्हारे पास, जैसे मेरे पास मैंने एक मांग टीका ख़रीदा, मुझे ये इस महीने में एक मांग टीका फ्री मिला फ्रॉम द अदर वेंडर. और वो जो वेंडर है ना, ही ऑलवेज गिव मी अ डिस्काउंट क्रेडिट. वी सेइंग नहीं, इफ आई से नहीं अभी थोड़े ही सेइंग नहीं बाद में दीजिए. इतना अच्छा मस्त अंडरस्टैंडिंग ऑन रिलेशनशिप है, मतलब यू अंडरस्टैंड ना. ही सेड ही से ये टोल्ड मी मैं सबको नहीं देता हूँ, सबको मतलब दे नो दैट कि पीपल विल नॉट कम बैक एंड ऑल. एंड आई एम मतलब आई एम द पर्सन हुज रेगुलर. अगर मैं कुछ छूती हूँ ना कुछ तो खरीदती हूँ. और काफ़ी सारा खरीदती हूँ, एक 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 चीज़ नहीं खरीदती हूँ. आँखों से पिलाते हैं इस शम्मे मस्तानी हजारों है, मस्तानी हजारों है. कितना भी लोग बोले ना कि वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट ब्यूटी, पीपल आर बॉदर्ड अबाउट ब्यूटी, ग्रेस, लग्जरी, अबंडेंस. मतलब अगर वो कुछ एक पर्सन को देखते हैं तुम उस पर्सन से लग्जरी झलकती है, ग्रेस, ब्यूटी, प्रॉस्पेरिटी झलकती है, तो पीपल विल आर अट्रैक्टेड टू यू. इवन योर एनिमीज, उनसे रहा नहीं जाता. दे हैव टू बी इन योर ऑरा, इन योर प्रेजेंस. तो अपने आप को इतना खुद ही को कर अपने को इतना बुलंद कि खुदा तुमसे पूछे बता तेरी रज़ा क्या है, तो तुम इतने अपने आप में इन्वेस्ट करो रैदर देन बीइंग इंटरेस्टेड. अभी मैंने गॉसिप को ना के बराबर रखा है, तो मेरी ज़िंदगी खुशहाल बन चुकी है. मैं एंटरटेन ही नहीं करती हूँ, नाइदर एम आई इंटरेस्टेड. अगर किसी का अच्छा होता है, मैं गॉड ब्लेस देम, राइट ना. जब मैं यंगर, मुझे ऐसा लगता है वो सारे साल में अंदर आइसोलेटेड थी. सी सोशल होना भी ज़रूरी होता है, बट वो सोशल कैसे होते हम लोग, मतलब 1 foot इन द डोर. वो क्या होता है ना, व्हेन यू आर टू सोशल, जैसे विद मी आई एम एन एम्बीवेंट, मीन्स आई एम एन इंट्रोवर्ट प्लस एन एक्सट्रोवर्ट. इफ आई बिकम टू सोशल ऑल्सो, तो मैं कहीं आई कैन नॉट हैंडल इट. आई कैन हैंडल इट इन स्मॉल डोजेज वेर आई कैन हैंडल इट. मतलब मैं मज़े करके सोशल हूँ, उतना तक ही. आंख पे नहीं लेती हूँ. आई एम नॉट ऑन सोशल, ये 24 घंटे सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट करो. आई होप यू अंडरस्टैंड. So sparingly I enjoy my social interactions also. सब कुछ अच्छे के लिए होता है. मैंने एक लंबा वीडियो बनाया था एंड आई वांटेड टू कल मॉर्निंग का 53 मिनट्स का, मुझे एडिट करके उसको 25 मिनट्स 30 मिनट्स का. आई कुड नॉट, आई स्ट्रगल्ड फॉर हाफ एन आवर 1 hour, बट नहीं हुआ. तो उसको अपलोड करने के चक्कर में आई कुड नॉट स्लीप दैट वेल, बट आई स्लेप्ट वेल, कंसिडरेबली स्लेप्ट वेल, बहुत अच्छी तरह से, नॉट दैट बैड. फिर मैंने सोचा शुड आई गो फॉर अ वॉक. मैंने बोला इट्स नॉट वर्थ इट. आज संडे है, लेट मी जस्ट रिलैक्स.
जब जब अगर मेरा मन करता है कि मुझे संडे जाना है तो मैं संडे चली जाऊँगी। फिर इनका कार्यक्रम 8 बजे शुरू हो जाता है ना। फिर ये ना क्या करते हैं, झाड़ू लगाते हैं। सो इफ़ यू आर स्टैंडिंग ओवर देयर तो वो लोग पर्पसली आके झाड़ू लगाना या पीछे का वो वीड्स कट करना पर्पसली करते हैं, जिसकी ज़रूरत नहीं होती है। फिर भी 10 लोग एक ही जगह पे झाड़ू लगाएंगे, कुछ मीनिंग नहीं। पहले मैं सोचती थी संडे को जाते ये झाड़ू क्यों लगा रहे, क्योंकि जबकि एक ही जगह पे 10 लोग रहेंगे विद द ब्रूम इन देयर हैंड्स। All these mostly senior citizens and this आंटी पॉन्टी हाउस वाइफ्स। फिर उनकी एक दो मॉनिटर्स होंगे। मेरे बाल कैसे सी एज ए सेड, मैंने हेयर के प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, इट्स अ प्लेसिबो इफेक्ट। वो तुम्हें तुम्हारे दिमाग को इस तरह प्रोग्राम करते हैं, क्योंकि इट्स अ बिजनेस एट द एंड ऑफ द डे। हमें ये सोचना चाहिए इलीट्स का किंगडम है, इलीट्स, everything is commercial including your own emotions. So psychology or psychiatry is a study of the unknown, like how to manipulate your emotions, right? तो ये लंबे घने बाल, एक अब जूही चावला के बाल कितने गंदे से हॉरिबल से है, लेकिन उसको वीग लगा के केश किंग में डाला है, तब भी तुम्हें समझना चाहिए दीज आर ऑल हिडन सिम्बॉलिज्म। मतलब डोंट एक्सपेक्ट टू मैनी थिंग्स। तुम लगाते हो तो ठीक है, ऑयल ऊपर से ही लगाते हो, थोड़ा पेनिट्रेट होके वो तुम्हें थोड़ा सा नरिशमेंट, थोड़ा सा मॉइस्चराइजर देगा, बट इट इज़ नॉट लॉन्ग लास्टिंग। योर जेनेटिक्स, योर लाइफ स्टाइल, अगर तुम अपनी लाइफ स्टाइल इम्प्रूव करते हैं एंड कीप योर हेयर केयर सिंपल, स्टार्ट यूजिंग हर्बल शैम्पूज, कीप वन गुड शैम्पू, लाइक जैसे आई कीप वन नॉन ऑर्गेनिक शैम्पू, जैसे एग सनसिल्क का यूज़। After my Hina application, after 3, 4, 5 days, अगर if there is more, then I wash it, then तो मुझे ये वाला लुक मिलता है। Then I have another shampoo of OGX, जो डिटॉक्स चाकोल वाला, which I use 3 or 4 months में एक बार, 2 महीने में एक बार। So you have to change your shampoos. I've seen people using the same stupid वाला, डैंड्रफ है तो वही शैम्पू, सच हैवी केमिकल्स, दे लीव अ रेजिड्यू ऑन योर हेयर। तो वो अच्छे कैसे दिखेंगे? धूप नहीं लगती है, एसी में बैठे रहते हैं, तो ये बहुत वीक हो जाता है। मूवमेंट नहीं है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं है। नाउ देयर इज़ अ लॉट ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, मतलब मेरा घूमना फिरना ज़्यादा रहता है, तो इसलिए टचवुड मेरे बाल भी अच्छे रहते हैं। सी आई गॉट दिस कॉफ़ी कलर, it is not orangish, it is little brownish, और वो the reason it is diluted is because I said the powder was 30 to 40% and 70% Hina, 30% Amla and hibiscus powder and 5% coffee, 5% भी नहीं, 2%, 5% coffee है। आँखों से पिलाती है। तुम्हारे ऑरा में तुम्हारी पर्सनालिटी ऐसी हो कि मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो मुंह बनाते थे मुझसे, ओपनली दुश्मनी करते थे, ओपनली मुझे इग्नोर अवॉइड करते थे, आज की तारीख में मेरे आसपास मंडरा रहे हैं, मुझसे बातें करने के लिए तरस रहे हैं, या कुछ ना कुछ अपने मेरे स्पेस में घुस रहे हैं। यस यस, ऐसा होता है। सितारे जब पलटते हैं या बुलंद होते हैं तो यू विल सी दो सेम पीपल बिहेव डिफरेंटली विद यू। Shouldn't be saying that, the other day when I wore red bindi, oh my kurta, मेरे एक्स उसके भाई के साथ था, he could not believe that I could look this amazing. उसने सोचा मैं रोने धोने में, गिड़गिड़ाने में, उसको वापस भीख मांगने में लगा दूंगी मेरा वक्त। मैंने बोला मैं पागल हूँ, सॉरी, आई डोंट बिलीव इन दिस। अपने प्यार में कोशिश करनी चाहिए, लेकिन सामने वाली पार्टी ऐसे ओवर एक्टिंग कर रही है, उसको तो बॉदरेशन नहीं है, तो क्यों इतना? आई डोंट नो व्हाई वुमेन आर वेस्टिंग देयर टाइम ऑन नो कॉन्टैक्ट और ब्लॉक और गोस्टिंग। अगर वापस आना है और तुम्हें भी उससे प्यार है तो तुम फॉरगिव करके यू विल मूव ऑन विद दैट सेम पर्सन। बट अगर तुम ईगो में बैठे हो कि वो पर्सन तुम्हारे पास आ जाए, क्योंकि तुम्हारा ईगो सेटिस्फाई होना चाहिए, क्योंकि तुम उससे प्यार करते हो, तुमने इतने एफर्ट्स डाले हैं, डजंट वर्क आउट लाइक दिस, लेट गो। इसलिए ये पूरे लोग इतना फ़ायदा उठाते हैं। डोंट डू दिस।
he was just stunned and he was looking so below average and horrible considering कि अभी वो इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हो चुका है. Could not believe. वो नज़रें चुराता था. He would take different exits thinking that I will chase him and say please come back. Let's talk about it. Why would I do that? And he could not believe this, that I was glowing, I'm looking good, I'm least concerned. मैं उसके थोबड़े को भी नहीं देख रही थी. मैंने शायद 2 सेकेंड्स के लिए उसका थोबड़ा देखा. एंड ही वाज स्टेयरिंग इनटू मी, स्टेयरिंग, लाइक लिटरली स्टेयरिंग इनटू मी, बिकॉज ही कुड नॉट बिलीव दैट आई कुड लुक दिस गुड. कि लास्ट ईयर वो मुझे काफ़ी क्रिटिसाइज़ करता था जो मुझे समझ में नहीं आता था, लेकिन क्योंकि वो सॉफ्टली और नाइसली करता है वो समझ में नहीं आता है. स्टॉप चेसिंग पीपल. वो चाहे तुम्हारे फ्रेंड्स हो, चाहे वो कोई भी हो, अगर वो भाव खाते हैं तो फॉरगेट इट. कुछ और लोगों को फॉलो अप करने का बहुत शौक रहता है, बार बार एक ही क्वेश्चन पूछेंगे, बार बार. स्टॉप चेसिंग. इफ जस्ट स्टॉप, जस्ट स्टॉप, जस्ट स्टॉप चेसिंग पीपल अननेसेसरली. अपने रिलेशनशिप को भी एक रिस्पेक्ट, स्पेस दे दो. अगर नहीं है सो नहीं है. और वो घमंड मत रखो. अभी तुम सोचो कि अगर तुम्हारा एक्स वापस आता है क्योंकि तुमने इतना सारा टाइम उस पर्सन के साथ स्पेंड किया है, अनलेस एंड अंटिल ही इज़ नॉट वेरी अब्यूजिव, डोमेस्टिक अब्यूज़ नहीं करता है एंड स्टफ लाइक दैट. बट तुम सोचते अपने दिमाग में शुड आई क्या कंटिन्यू विद माई एक्स. इट डिपेंड्स अपॉन योर सिचुएशन. डू यू हैव अनदर पर्सन इन योर लाइफ, हैव यू मूव्ड ऑन, वॉट आर हाउ. ऐसा नहीं कि एक्स आया और तुम शादी में जैसे नाचते हैं ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना पागल की तरह झूमना, आ गया वापस आ गया, केसरिया बालम आ गया करके. ऐसा नहीं होता है. काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं. यू हैव मूव्ड ऑन, मे बी योर थॉट प्रोसेसेस आर डिफरेंट, या उसकी बातें तुम्हें हॉन्ट करती है कि उसने कितनी बुरी तरह से ट्रीट किया था. तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. एक्स अगर वापस आता है तो इट्स नॉट अ वेरी, इट्स अ वेरी, आई वोंट से इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, बिकॉज कहीं ना कहीं तुम्हें भी एक क्लोजर चाहिए होता है. तुम्हें भी एक चैप्टर को बराबर से एंड करना होता है, जो कभी होता नहीं हो, रियल लाइफ में कभी नहीं होता. सो unless has that person changed, is that person getting something on the table, something different on the table, what is the direction of your relationship, what are the expectations. ये सारी बातें हमें सोचनी पड़ती है. बट व्हेन आई सी इन द मीडिया ने वो ब्रेकअप को भी इतना बेकार बकवास चीज़ें जैसे दिखाते हैं. नहीं, गिवन अ चांस सो मेनी ऑफ देम, बिकॉज पीपल, सॉरी टू से, हैव अ इंटिमेसी ऑल्सो विद देयर एक्स. तो वो काफ़ी सारी चीज़ें होती है, एक ही चीज़ नहीं होती है ना. अगर हमारी नज़रें मिलती है, इट्स बिकॉज समथिंग, वी हैड अ बॉन्ड, वी हैड समथिंग स्पेशल बिफोर. चाहे अभी वो टूट फूट गया है एंड देन ही इज टेलिंग मी देयर इज नथिंग बिटवीन अस. अगर नथिंग बिटवीन अस, देन यू विल नॉट बी बॉदर्ड, यू विल नॉट इवन लुक एट माई फेस, यू विल नॉट बी बॉदर्ड अबाउट मी. जब हमारी नज़रें मिलती है, मतलब एक बॉन्ड था एक ज़माने में, एक फीलिंग, स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री थी, एक स्ट्रॉन्ग कुछ था, पैशन. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, यू नो. जस्ट ये दो लोगों के बीच में होता है, वो सिर्फ वो दो लोग समझते हैं. ओके. तो ये तीसरा पर्सन आके कितना भी तुम्हें काउंसलिंग करे और ये बताए वो बताए, इसलिए मैं लोगों को बोलती हूँ कि पति पत्नी के बीच में अगर कुछ, लेट देम सॉर्टेड आउट. अनलेस एंड अनटिल बात डोमेस्टिक वायलेंस पे आ चुकी है और दूसरी बातें, बट लेट देम सॉर्टेड. गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में किसी की साइड नहीं लेनी चाहिए. जस्ट गिव देम, हाँ हाँ सुन लिया, ओके वी अंडरस्टैंड, नेक्स्ट मोमेंट दे आर टुगेदर. एक औरत और मर्द के बीच का रिश्ता ही अलग रहता है. आई टेल यू, इफ़ आई फाइट विद माई मेल फ्रेंड्स, आई कैन बिकम फ्रेंड्स विद देम जस्ट लाइक दिस. बट इफ़ आई फाइट विद माई फीमेल फ्रेंड, वहाँ पर फाइट भी नहीं होता है. कुछ छोटी मोटी चीज़ों पे मन मोटा होता है. साली ये बहनचोद औरतें बात ही नहीं कर, बात करना ही बंद कर देते, फिर ऐसा पनिश कर देना जैसे पता नहीं क्या इनका
चक्की का आटा खाया है, पता नहीं इनके हस्बैंड पता नहीं क्या किया है, यू नो। सो विद वुमेन इट इज़ समथिंग, छोटी छोटी बातों का बात का बतंगड़ बना के मुंह बनाएंगे, बात नहीं करेंगे और अपने दिल में वो सड़न जलन रखेंगे। रियली विद मेन इट इज़ नॉट सो। उनको तो लाफ आई वॉज एट हाथ पैर चलाने वाला पर्सन, यू नो। रियली मैं मारूँ क्या पंच और मैं गाली गलौज, ये वो, आई वॉज दिस राउडी काइंड ऑफ अ पर्सन, राइट। फिर भी मेरे मेल फ्रेंड्स मुझे इतना मतलब प्रिफर करते थे। आई रिमेंबर इफ आई एम क्वाइट वन ऑफ माई बेस्टीज विल टेल मी, यार गाली तो देना यार, तू चुप अच्छी नहीं लगती है यार, कुछ तो बोलना। विद अ फीमेल मुंह बनाएगी 24 घंटे, कंपटीशन करती रहेगी एट द बैक ऑफ हर माइंड। तो उसकी स्टोरी मेरी स्टोरी इसके स्टोरी से बेहतर होनी चाहिए। और रिलेशनशिप को भी बड़ा ग्लैमराइज करेंगे, बड़ा ऐसे बड़ा चढ़ा के एग्जैजरेट करेंगे। कभी कभी लोगों की रिलेशनशिप बहुत ही बोरिंग रहती है, उसमें कुछ भी एक्साइटिंग नहीं रहता है। सो व्हाई एम आई टॉकिंग अबाउट दिस इज़ दैट एक तुम कितना भी बोलो, अगर तुम एक डिवोर्स भी करते हो, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में डिवोर्स होता है, उनके बच्चे होते हैं, अगर बच्चे होते हैं ठीक है, नहीं होते तो एक रिश्ता रहता है, वो चाहे ख़राब ही क्यों ना हो, एक रिश्ता, बिकॉज यू शेयर अ स्पेस, यू शेयर थिंग्स, यू शेयर टाइम। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो इसलिए इसके वजह से भी ये है, यू नो। तो दैट्स वो, चाहे वो मुझे कितने भी कैसी कैसी बातें उसने की है मेरे साथ, और उसको खुद भी पता है कि उसने किस तरह से मैनिपुलेट किया है इस रिश्ते को विथ हिज टॉक्स, जो मुझे समझ में नहीं आता, बिकॉज आई एम सच एन एड़ा पर्सन, यू नो, आई एम अ स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। मेरे को नहीं आता ये जिलेबी वाली बातें करना, गोल गोल घुमा घुमा के बातें करना। You know, I wanted to be very naughty, like since brother was also there, comparatively the brother looks better. Comparatively, I won't say I find him so nonetheless. तो मैंने बोला why don't I say hi करके, मेरा एक बार एक मन किया just to say hello to the brother when this guy is standing next and ignore this guy. मैंने बोला नहीं, this will be too dramatic then, जाने दो। द ब्रदर इज ऑल्सो वेटिंग कि कहाँ एक कुछ हो जाए, कुछ क्लू मिल जाए करके। सो ही कीप्स लुकिंग इन टू माई फेस कि मेरे भाई ने इसके अंदर क्या देखा। सो आई सेड नहीं ये सब नाटक नौटंकी नहीं करूँगी, फॉरगेट इट, डजंट मेक अ डिफरेंस। वी वुमेन आर इमोशनल फूल्स। जहाँ हमें रिश्ते को रिस्पेक्ट करना चाहिए, कुछ रिश्तों को जोड़ के रखना चाहिए, उन रिश्तों को हम गवा देते हैं और ये अननेसेसरी अनवांटेड चीज़ों पे ध्यान लगा के। सेलिब्रिटीज़ क्या कर रहे हैं, सेलिब्रिटीज़ का फैशन, सेलिब्रिटीज़ का रिलेशनशिप, दुनिया का माल मसाला, पॉप स्टार्स क्या कर रहे हैं, हॉलीवुड क्या कर रहा है, ये देश, और सम फीमेल वांट्स टू बी जूडो इंटेलेक्चुअल, सो दे विल टॉक रैंडमली अबाउट सम स्टूपिड बुक्स। और खाना खाते वक्त दिल भी लाइक ओ आई एम अ कीटो डाइट, पेलियो डाइट, सात्विक डाइट, वेज डाइट, नॉन वेज डाइट, वहाँ कार्निवोर, हर्बीवोर, फ्रूटेशन, बहुत बोर ही करते रहेंगे। तो सनसाइंस के बारे में बातें करते रहेंगे, ओ आई एम अ लिब्रा, ओ आई एम अ दिस, आई एम अ दैट। मतलब दे आर वेरी शैलो, वी बिकम वेरी शैलो एज वुमेन, सॉरी टू से दिस। वी हैव मोर टू अस देन आर स्टूपिड मेकअप, और मेकअप भी ऐसे महंगे चीज़ें फॉर दैट स्टूपिड आई लैश, फॉर दैट स्टूपिड आईज जो हमारे इतने ब्यूटीफुल रहते हैं, उसको भी 1000 केमिकल डाल के ख़राब करना, फिर बालों को ख़राब करना विथ सो मच ऑफ स्पा एंड सो मच ऑफ हॉरेबल केमिकल प्रोडक्ट, शैम्पू, कंडीशनर, सीरम, ऑयल। एक बाल कितना ले सकता है, ब्लो ड्राइंग, स्टाइलिंग, फिर ये नेल्स कितना कुछ ले सकते हैं, फेक नेल्स, कपड़े, ज्वेलरी। हम वी शुड कम आउट ऑफ ऑल दीज थिंग्स। कपड़े मतलब ऑब्सेशन हो चुका है, इससे सिली कपड़े ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे, लॉन्जरीज ऑर्डर करेंगे, क्या मीनिंग बनता है इन सब चीज़ का, जब हमारा कैरेक्टर ही इतना शैलो है। वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे बात करेंगे। मैंने बोला इफ़ आई कैन सिट डाउन एंड ब्रेक डाउन थिंग्स,
आई ऑल विल बी प्रैक्टिकली शॉक्ड. तो मैं अपना मुंह, आई कैन कांट आई साउंड एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट. इनफैक्ट आई कैन, इफ़ गिवन अ चॉइस आई वुड हैव मेड एकदम ब्रेक डाउन करके, ऐसे ऐसे वीडियोज़ का एक ब्रेक डाउन करके डिसाइफर करके मैं बता भी सकती थी. आई एम लिटरली जिपिंग माई माउथ ऑफ. ओ WHO, yeah, they will talk about these spiritual gurus, oh this one is that way and more knowledge. And एक सफ़ेद साड़ी में लपटी हुई या कोई कलरफुल कपड़े में बैठी हुई औरत विद दैट. आजकल जया किशोरी कुछ कथावाचक बन चुकी है, फेमस है, पता नहीं. वाई डू यू नीड टू लिसन टू दिस पुरातन काल के स्टोरीज. उनको सुनो तुम, लाइक अ स्टोरी टेलिंग सेशन. घुस गए उस सत्संग के अंदर. चाहे तुम्हारे कर्मा ज़ीरो है. आई एम टॉकिंग टू इवन सीनियर सिटीजन लेडीज़ जो अगर 50 साल के ऊपर है, उनके पति रिटायर हो चुके हैं, बच्चे वेल सेटल शादी करके उनके बच्चे हो चुके हैं, उन लोग अब्रॉड है या यहाँ पर भी है तो वेल सेटल्ड है, सत्संग में घुस जाएंगे. अपने कर्म पहले ठीक करो, अपने घर को ठीक करो. अपने घर में खाना, पहले अपने हस्बैंड ने खाना खाया, तूने पहले खाना खाया. हैव यू ईटन योर ओन फूड. फालतू का फास्टिंग रखेंगे, खाना नहीं बनाएंगे, या खाना बनाने वाली है तो आई डोंट नो कैसे कैसे कंजूसी से खाना बनाएंगे. ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, ये नहीं करना है, टीवी देखना है. एंड ओल्ड पीपल स्पेशली मैन, दे वांट टू सी न्यूज़. व्हाई डू यू वांट टू सी न्यूज़? हाउ डज इट मैटर कौन सा गवर्नमेंट. अगर तुम लोग के पॉलिटिक्स के बारे में मैं बताती ना तो जाने दो. इट इज़ ऑल बकवास. ये एक ड्रामा है, रंगमंच. ये सारे कैरेक्टर्स हैं जिनको जितनी देर तक रहना है वो उतनी देर तक रहेंगे, चाहे घंटा कुछ बिगाड़ लो. ऑपोजिशन एंड कंट्रोल ऑपोजिशन ऑलवेज द सेम कॉइन, चाहे वो कुछ भी हो. पेट्रोल के दाम बढ़ गए. अगर पेट्रोल की बात करो तो ओ फॉसिल फ्यूल, क्या मेंटल जैसे कुछ होता है कि इतने सारे डायनासोर्स मर गए तो उनकी हड्डियों का तेल निकल आया. कुछ इडियोटिक चीज़ें ऐसे कुछ बोलते रहते हैं. हमारी हिस्ट्री ज्योग्राफी भी इतना मैन्युफैक्चर्ड है ना कि क्या सच है क्या झूठ है ये भी समझ में नहीं आता है. ब्रह्मांड के बारे में बातें करते हैं लोग. आजकल हर चीज़ को लेके प्राउड हो चुके हैं. स्टेटस मैटर्स. स्टेटस को मैनेज करना भी नहीं आता है लोगों को. बीमार से बूढ़े से लगते हैं. सॉरी, आई एम साउंडिंग वेरी एग्रेसिव आफ्टर माई ब्रेकफास्ट. जैसे मुझे ताकत आ चुकी है. तुम जब गार्डनिंग करते हो ना, ये मिट्टी से जुड़ी चीज़ें होती है. यू जब पौधे उगते हैं ना, यू विल बी वंडरिंग कि ये कैसे उगते हैं. मैंने छोटे छोटे कंटेनर में लगाया है. एंड आई डोंट नो वेदर आई कैन शो यू ऑल. इफ़ आई कैन शो यू ऑल, अगर ये जो है अभी बहुत सारा लाइट आ रहा है ना, यू कैन सी दिस. ये अजवाइन का है. ये बहुत भर के बुशी होता है. ये मनी प्लांट का है. ये स्नेक प्लांट है. आई डोंट नो वेदर यू कैन सी इट. यू कैन सी इट. लाइट की वजह से नहीं दिखाई देता है. तुलसी एंड मिंट हैज़ ग्रोन इन द सेम पॉट. उसके साथ एक छोटा सा आंवले का झाड़ भी उग चुका है. बिकॉज माई सॉइल इज़ सो फर्टाइल इन द पॉट बिकॉज ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स. मेरी एक भी वेजिटेबल थिंग वेस्ट नहीं होती है मेरे इसमें. गिवन बैक टू द प्लांट्स, इसलिए वो इतने ब्यूटिफुल है. एंड वी यूज़ आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स ऑन आवर फूड. यू नो वॉट गॉड हैज़ सेड, गिव अस टुडे आवर डेली ब्रेड. मतलब अगर हम अच्छी तरह से, जैसे मैंने पहले भी कहा कि तुम्हारे कोई लोन्स नहीं है, तुम अपना बिल्स पे करके अपने ही घर में रहते हो, किराए के घर में नहीं, और तुम्हारी हेल्थ अच्छी है, यू आर अ मिलियनेयर. ये 4-5 चीज़ें हैं, यू आर अ मिलियनेयर. फिर बाद में अगर तुम्हारे लविंग रिलेशनशिप है, तुम्हारा सोशल सेटअप अच्छा है, तुम अच्छा खासा खाते हो पीते हो, यू आर अ राजा, मर्जी का मालिक.
क्यों करोड़ों रुपए लेके छाती पे मरना है कि क्या करना है उस करोड़ों रुपए? फॉरेन ट्रिप, मैंने बोला ये सारे हॉलीडे डेस्टिनेशन आर जस्ट बिजनेस मेकिंग यार। तुम जाओ, तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पैसे है, जाओ घूम के वापस आ जाओ। फिर ये रेस्टोरेंट्स के खाने, खाना 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 24 घंटे मुंह में कुछ ना कुछ ठूसना है। वाई डोंट वी जस्ट बी ग्रेटफुल? वाई डोंट वी जस्ट बी ग्रेटफुल कि नहीं भाई, मर्जी का मालिक, राजा, आई एम अ मिलियनर माई सेल्फ, सब कुछ है मेरे पास, बट नहीं, रोना धोना, मोर 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 मोर। अगर तुम किराए के घर में रहते हो तो तुम्हें अपना घर, दैट शुड बी योर गोल इन लाइफ कि मैं अपना खुद का घर बनाऊँ। आई शुड नॉट बी इन डेट्स। ये बड़े बड़े फ्लैट्स में रहने वाले कर्जे में डूबे पड़े रहते हैं, 2-2 करोड़ का फ्लैट लेते हैं, फिर 50 लाख की इनकी एक गाड़ी रहती है, फिर एक नहीं 2-2 गाड़ियाँ रहती है, फिर बाइक रहती है, फिर ये इनके शॉपिंग के ट्रिप्स रहते हैं, ये वेकेशन पे जाते हैं, इनके बच्चे महंगे महंगे कब इसमें पढ़ते हैं, इनकी बीवियाँ कितना पैसा खर्च करती है किटी पार्टी और सलून और ये, फिर इनके खुद के खर्चे, ये खुद भी जिम में होते हैं, इनके बच्चे बीवी जिम में रहते हैं। सो कैन यू इमेजिन ये कितने इनकी कितना भी पैसा हो कम ही पड़ता है उनको। आए दिन बाहर का खाना खाना है, बाहर से ऑर्डर करना है, फिर ब्रांडेड चीज़ें लेनी है। ये लिटरली दे आर लिटरली स्ट्रेस्ड आउट क्योंकि अपने लाइफस्टाइल मेंटेन करनी होती है। वही चीज़ अगर तुम एक सिंपल बिल्डिंग में रहो और तुम्हारे पास एक व्हीकल है या एक स्कूटर है, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, अगर तुम्हारा क्या है, मतलब तुम्हारा मूवमेंट है, देन यू विल हैव सच थिंग्स। फिर इनके सर्वेंट्स भी होते हैं, एक झाड़ू पोछा करने के लिए, एक किचन संभालने के लिए, एक इनके बूढ़े माँ बाप को संभालने के लिए। एक घर में 2-3 सर्वेंट्स होते ही है, सिर्फ बर्तन करने के लिए, खाना बनाने के लिए, एक बच्चों को संभालने के लिए। ये ऐसा सब होता है। इस सलून में जाओ तुम 1200 रुपीज़ में, मेरा 200-300 रुपये में हो जाता, 300 रुपये में हो जाता है। Of course they charge you for other things if you're taking a hair wash or a hair blow dry, which I tell them please no blow dry for me, not because I want to save money, क्योंकि मेरे बालों को blow dry की ज़रूरत ही नहीं है। So they also, जो मेरा बाल काटता है उसको भी पता होता है कि वो मुझे ड्राई, वो खुद भी बोलते हैं मैम इतना ज़्यादा ब्लो ड्राइंग से बाल बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं, तो वो सिर्फ हल्के इसमें वो करता है बस। सी इफ़ यू आर नोइंग योर वेंडर्स वेल ना, सो दे टेल यू द इनसाइड स्टोरी ऑल्सो कि अगर कोई माल टूटा फूटा है जैसे आप मैम ये मैडम आप मत लीजिए। लाइक व्हेन आई यूज्ड टू ब्रिंग मिल्क एंड ऑल सम फ्रॉम, नॉट सॉरी मिल्क, दही फ्रॉम वन प्लेस ना, तो ही पनीर एंड दही, ही सेड नहीं मैडम आप ये मत लीजिए, ये कल का है, नहीं ये टोस्ट को बहुत टाइम लग, या सो दे विल बी वेरी फ्रेंडली विद यू, दे विल बी वेरी नाइस विद यू इन द सेंस दे विल टेल यू। तो इट्स द वे यू मेंटेन योर रिलेशनशिप्स, तो दैट सच वंडरफुल। अभी यही हेयर कट वो सामने वाला सलून देगा जो वो पॉश बिल्डिंग में है, जूस, एंड चार्ज यू 1500 फॉर दिस सिंपल 1-2 इंच काटने के लिए, कुछ मीनिंग है। वी वुमेन वांट ऑल ब्रांड ना, एक बार तुम उनके इसमें घुस जाओ, बिकॉज दे चार्ज यू सच हाई, बिकॉज दे हैव टू पे देयर स्टाफ, द रेंट्स आर सो हाई, प्लस एक ब्रांड नेम, यू आर पेइंग फॉर द ब्रांड नेम, यू आर पेइंग 1000 रुपीज़ फॉर द ब्रांड नेम। हेयर कट सिर्फ 200 रुपये का होता है, होप यू अंडरस्टैंड। फिर लेटेस्ट फैशन की चीज़ें भी खरीदनी है। We women are the biggest consumer of the products, not the men. We women, though we are just 70% of the population. वो वुमेन को ही क्रेजी बनाते हैं हर चीज़ में। एडवर्टाइजमेंट में भी वुमेन को आगे आगे क्यों डालते हैं? क्योंकि वुमेन बिकम्स एन इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर। कीप योर लाइफ सिंपल। अगर वी वुमेन are very strong in our character, strong is in our character doesn't mean that we have to be ghamandi or harami औरतें, which I see a lot of females, they think that by talking rudely or roughly they are strong in their character. नहीं, मैंने बोला this is हरामीपन। Can you stand by your commitments in the sense तुम अपने कैरेक्टर को एनहेंस करते हो, तुम अपने आप में खुश रहते हो, यू आर कंटेंट विद योर सेल्फ, यू आर नॉट एन अटेंशन सीकर, यू आर नॉट अ डेस्पराडो,
मैं अपने कंफर्टेबली घर के कपड़े में बैठी हूँ बिकॉज आई एम कंफर्टेबल विद माई सेल्फ। नहीं, साफ मतलब साफ सफाई में घुसे पड़े रहते हैं। मैंने बोला बॉम्बे जैसे प्लेस में तुम कि अपने घर को साफ कर सकते हो जैसे तुम बाहर जाते हो। कैन यू कंट्रोल द थिंग्स? यू कैन नॉट कंट्रोल अदर पीपल, यू कैन नॉट कंट्रोल अदर थिंग्स। हर चीज़ में एक्सट्रीमिटी, हर चीज़ धर्म कर्म का मतलब यहाँ पे लोग टूट पड़ते हैं। आई टेल देम स्टॉप बीइंग अ हाइना, स्टॉप पाउंसिंग ऑन मी, एक्सक्यूज मी, स्टॉप पाउंसिंग ऑन मी। I learned this strength of character eventually. See, अभी since I was like a tomboy as I said ना कि मैंने ऐसे ऐसे चीज़ें की है मेरी लाइफ में, तो and I'm from Bombay, तो that is also a plus point. मैं दूसरे औरतों को बोलती ढकी ढकी रहती है, मैंने बोला ढोंगीपना करना बंद कर दो। सर से लेके पैर तक ढकने से क्या होगा तुम्हारा? कुछ नहीं होगा। तुम किसी जंगल में नहीं रहते हो, कबीले में नहीं रहते कि दूसरे कबीले वाले आके तुम्हें रेप करेंगे। मैंने बोला तुम्हारे घर के लोग वहाँ पे ही भक्षक है, तुम्हारे रक्षक ही भक्षक है, तुम्हें बाहर के लोगों की ज़रूरत नहीं है जो ढके ढके रहते हैं। आई एम श्योर लोगों को पता चल रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ। जो भी ढके ढके रहते हैं मतलब उनको ना कपड़े पहनने हैं, ना नए वो कपड़े धोने हैं या खुद को धोना है, पता नहीं क्या है, वो भी इजी हो जाता है ना ढके ढके रहने से। ये ओ सीनियर सिटीजन टेक इट ईजी। हाँ, तुम्हारे पूजा पाठ करने से या 1000 बार वो रिलीजियस बुक्स लेके पढ़ना, ज़ोर ज़ोर से पढ़ना या भजन लगाना, एक सुबह थोड़ा देर लगाया समझ में आया, लेकिन पूरा दिन भजन लगा के ज़ोर ज़ोर से सुनना, टीवी पर भी भक्ति का वो सुनना, उससे तुम्हारे लाइफ में कोई भी डिफरेंस नहीं होने वाला है। वो पैसे बना रहे हैं, वो पैसे बनाते रहेंगे और वो और ज़्यादा पॉपुलर बनेंगे, लेकिन तुम्हारी भक्ति में कोई फ़र्क नहीं आने वाला है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी भक्ति होनी चाहिए। तुम कंजूस हो लेकिन तुम अपने सर्वेंट को तुम वहाँ पे भक्ति चैनल देख रहे हो, तुम्हारी सर्वेंट वहाँ पे मरी मरी जा रही है और तुम ज़बरदस्ती उसको ज़्यादा काम दे रहे हो, जबकि काम 10 मिनट में निपट सकता है। तुम उसको पैसे दे रहे हो और उसको सताना है, तो उसके साथ कैसे कैसे बातें करते हो, हॉरिबली ट्रीट करते हो या इंसल्ट करके बातें करते हो या उसका काम और ज़्यादा बढ़ाते हो। समझ में आता ना? कुछ औरतें होती है जो अपने सर्वेंट के साथ खुद भी काम करती है, दैट इज़ ऑल्सो गुड थिंग बिकॉज यू कैन नॉट लीव एवरीथिंग टू द सर्वेंट। जब तुम सामने से काम करते हो तो उनको भी खुशी आ जाती है, तो वो भी मोटिवेटेड रहते हैं टू डू गुड वर्क। तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी भक्ति है और शक्ति है और कुछ नहीं। कर्म ही टेढ़े मेढ़े है, थॉट्स टेढ़े मेढ़े है, बातें टेढ़ी मेढ़ी है, हरकतें टेढ़ी मेढ़ी है। तुम कितना भी भक्ति चैनल सुनो, कितने भी सत्संग जाओ, कितने भी चारों धाम के वो करो, क्या बोलते हो उसको, देव दर्शन करो, कोई मायने नहीं बनता है। बालाजी जाएंगे क्योंकि हमने मन्नत मांगी थी, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, वहाँ यहाँ वहाँ जाने, वैष्णो देवी जाएंगे, वाई कुछ मांगने के लिए तो जाएंगे, कुछ मांगने के लिए वहाँ तक भी पहाड़ों में भी जाएंगे मेंटल लोग। मैं हिंदुओं की बात ही नहीं करूँ, ये मुसलमान भी हज में जाते, मैंने बोला कर्म कर्म करो अपने। ये क्रिश्चियंस देखो आधे पागल, ये क्या, ये तो ऐसे धर्म कर्म में ऐसे लगे पड़े रहते हैं। हीलिंग हीलिंग, मैंने बोला खाने पीने पे कुछ लिमिट है? नॉनवेज ठूसना है और हीलिंग कहाँ से होगा भाई? मैजिकली तो है नहीं ना। हज करके आ गए, मैंने हज करके आने से तो अगर तुम लोग के धर्म में लिखा है तो कि लाइफ टाइम में एक बार, उसके बाद का तुम्हारा कर्म क्या है? कर्म ठीक है तुम्हारा वैसे का वैसे हर, तुम दूसरों को देख के लुक डाउन अपॉन करते हैं कि तुम्हारा रिलीजन एकदम सुपीरियर है बाकी का एकदम, ऐसे ऐसे मतलब अपने आप को सुपीरियर करते हैं। Stop whitewashing your
crimes by behaving like a hypocrite. Seriously. इनफैक्ट व्हेन आई सी दिस, जो लोग ज़्यादा ही भक्ति में जुड़े रहते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा पाखंडी, ढोंगी और कपटी रहते हैं. सीरियसली, हरामी जात रहते हैं ये. तुम दिन में 5 बार प्रे कर भी तुम बात बात में लोगों को दिल दुखाओगे या उनका हक मारोगे या औरतों को बेइज्जत करते रहोगे, तो तुम्हारा क्या मीनिंग बनता है? अब्यूज़ करोगे, पता नहीं तुम्हारे सेक्सुअल एक्ट्स कितने हॉरिबल और वायलेंट होंगे. वी डोंट नो तुम अपने बच्चों को किस तरह से ट्रीट करते हो, औरतों को कितनी बुरी नज़र से देखते हो. अभी तुम लोग बाहर निकले हो मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा से, लेकिन तुम्हारे दिल में नेक्स्ट मोमेंट तुम लोग पॉर्न देखते हो, गंदी बातें करते हो, गंदे जोक्स सुनते हो, या किसी को ठगना, लूटना, किसी का माल चुराना, किसी को षड्यंत्र करना. बहुत सीरियस बातें कर रही हूँ, लेकिन आई हैड टू टॉक दिस टॉपिक, तो मैं इसलिए मैंने सीधा सीधा बोला. चलो, आई जस्ट वाइंड अप. यू ऑल हैव अ ब्लेस्ड डे. ये मेरा संडे का ज्ञान था. संडे सर्वेंट्स, ये मैं मुंह पे बोलूँगी, मुंह पे. मुझे कोई आके बोले वरना जिप इट अप, जिप इट अप, जिप इट अप. या तो तुम्हें जलाया जाएगा या तो दफनाया जाएगा. तुम्हारा दिन, तुम यहाँ पे जैसे हम लोग भाड़ोत्री है ना, जैसे वैसे हैं हम लोग ये दुनिया में. लोग ऐसे जीते जैसे उनको मौत ही नहीं आएगी, इतना माल मसाला लपेटते हैं. मैंने बोला ये तो जाना है नीचे मिट्टी में. या तो तुम्हें जलाया जाएगा. अभी जब तक जिंदा हो तो कर लो नाटक नखरा. कर्म, कर्म ठीक नहीं तो कुछ भी नहीं होगा. हम अपने कपड़े नहीं लेके जाते, हम अपना कर्मा लेके जाते. कपड़े, ज्वेलरी, प्रॉपर्टी, शेयर सर्टिफिकेट, बैंक बैलेंस नहीं लेके जाते वहाँ पर. फर्नीचर नहीं लेके जाते, होम डेकोर नहीं लेके जाते. यहाँ पे मरना सड़ना नहीं है हम लोगों को. Okay, take care of yourselves. Bye.